بج تو اہم خبر ست وزیر اعظم نریندر مودین وقف قانون حوالہ کت کران وقف کس ناوس پہ ملکس اندر لچھواد کنال زمین تاہم ازیک تام آو ام مستحق تو غریب مسلمان لکن کھانا فائدہ واتنانہ تمو ون وقفس پہ صرف خاص نفرو قبضہ کورمت وزیر اعظم مودین ون وقف ترمیمی قانون ذریعہ تمام مستحق نفرن امیک فائدہ واتنانہ یت مسلمان ہز ترقی یقینی بنانے یہ تمو ون تمو کانگریس پارٹی ہز تنقید کران کانگریس پارٹی ووٹ بینک خاطر مسلمان ہند استعمال کران تمو ون ہرگاہ کانگریس پارٹی پز پہ مسلمان ہز دگ کانگریس پارٹی ہند صدر گژھِ تیل مسلمان لیڈر بنانے یون وزیر اعظم مودی سند طرف ہریانہ مز اکس تقریب دوران ان کتن ہز باوت کرنا آمز کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے ہت میں کیا. میں ذرا ایسے سبھیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ووٹ بینک کے بھوکے ان راجنیتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں, اگر سچے ارتھ سے آپ کے دل میں مسلمانوں کے لیے تھوڑی بھی ہمدردی ہے تو کانگریس پارٹی اپنے پارٹی کے ادھیکش مسلمان کو بنائے. کیوں نہیں بناتے بھائی؟ سنسد میں ٹکٹ دیتے ہیں 50% مسلمانوں کو دو, جیت کر کے آئیں گے تو اپنی بات بتائیں گے. لیکن یہ نہیں کرنا ہے, کانگریس میں تو کچھ نہیں دینا ہے. دیش کے ناگرکوں کے ادھیکاروں کو چھیننا اور دینا, ان کی نیت کسی کا بھی بھلا کرنے کی کبھی نہیں رہی, مسلمانوں کا بھلا کرنے کی بھی نہیں رہی. یہی کانگریس کی اچھی سچائی ہے. ساتھیوں, وقف کے نام پر لاکھوں ہیکٹر زمین پورے دیش میں ہے. اس زمین, اس پراپرٹی سے غریب کا, بے سہارا مہیلاؤں بچوں کا بھلا ہونا چاہیے تھا. اور آج ایمانداری سے اس کا اپیوگ ہوا ہوتا تو میرے مسلمان نوجوانوں کو سائیکل کے پنکچر بنا کر کے زندگی نہیں گزارنی پڑتی. لیکن اس سے مٹھی بھر بھو مافیا کا ہوئی بھلا ہوا. پسماندہ مسلم اس سماج کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور یہ بھو مافیا کس کی زمین لوٹ رہے تھے؟ یہ دلت کی زمین لوٹ رہے تھے, پچھڑوں کی زمین لوٹ رہے تھے, آدیواسی کی زمین لوٹ رہے تھے, ودھوا مہیلاؤں کی سمپتی لوٹ رہے تھے. سینکڑوں ودھوا مسلم مہیلاؤں نے بھارت سرکار کو چٹھی لکھی, تب جا کے قانون کی چرچا آئی ہے. وقف قانون میں بدلاؤ کے بعد اب یہ غریبوں سے جو لوٹا جا رہا ہے وہ بند ہونے والا ہے. اور سب سے بڑی بات, ہم نے ایک بہت بڑا ذمہ داری پورن مہتوپورن کام کیا ہے. ہم نے اس وقف قانون میں ایک اور پراودھان کیا ہے. اب نئے قانون کے تحت, وقف کے قانون کے تحت کسی بھی آدیواسی کی زمین کو ہندوستان کے کسی بھی کونے میں آدیواسی کی زمین کو, اس کے گھر کو, اس کی سمپتی کو یہ وقف بورڈ ہاتھ بھی نہیں لگا پائے گا. وقف ترمیمی قانون حوالہ سی پی آئی ایم پارٹی سینئر لیڈر تھے ایم ایل اے کلگام محمد یوسف طاہر گامین وونمت وقف قانون
मुसलमानन तो अकलियती तबकस पे हमला तमो वोन जे प्रथ तबकस हक जे सह कर पन्ने प्रॉपर्टी हज पाने हिफाजत। मोहम्मद यूसुफ तारगामियन वोन जे CPI पार्टी तरफ तश वक़फ कानूनस खिलाफ करारदाद पास करना आमज। मैं एक चीज़ बताऊंगा, जहाँ तक वक़्फ़ में तरमीम लाई इस सरकार ने पार्लियामेंट में, और बाद में पार्लियामेंट ने बड़ी तादाद में वोट डाला इसके उनके बिल के बारे में। लेकिन एक और बड़ी तादाद, ये भी एक खबर है जो हमारे सामने काफ़ी हौसला अफजा है, वो ये है कि बड़ी तादाद ने पार्लियामेंट मेंबर ने इसके ख़िलाफ़ भी वोट डाला। 232 लोकसभा में और राज्यसभा में कितने, बड़ी तादाद ने इस बिल के खिलाफ वोट डाला। इसके मुताबिक उम्मीद जिंदा है, आगे बढ़ने के रास्ते पूरे तौर पर बंद हुए नहीं। ये हमारे लिए हौसला अफजा बात है। तो इस वजह से मेरा मानना ये है कि यह नाइंसाफ़ी है। हमारी पार्टी ने अभी तमिलनाडु में मदुराई में कॉन्फ्रेंस में, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, और जिसमें बरमला कहा ये अक़लियती हुकूक पर एक असॉल्ट है, मुसलमान अक़लियत को निशाना बनाया जा रहा है। और इस वजह से जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी पार्टी का, हमारा मौक़िफ़ पहले से ही वाज़ेह है। वक़्फ़ का सवाल हो, हर कम्युनिटी को इख्तियार है अपने एसेट्स का, अपनी प्रॉपर्टीज़ का दिफा करे, उनका इंतज़ाम चलाए। सरकार को ये हक नहीं है कि वो उन जो एरियाज़ में दखल अंदाजी कर ले जो उनका बनता नहीं है हक। ममता बनर्जी की स्टेटमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? एक सीधा मना कर दिया, ठुकरा दिया। नहीं, अभी आगे आने वाले वक्त में हम भी कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। मगर छुपी शादी जा रही है, देखा जाए तो असेंबली में भी कहा गया कि बस छुपी शादी गई और इस पर नहीं, ये छुपी शादी किसने, इतना शोर था वहाँ, कौन सा मेंबर है मेरे ख्याल में रूलिंग पार्टी से लेकर कॉन्फ्रेंस को लेकर, रूलिंग पार्टी ने वहाँ आप देख लीजिए कितना क्या किया। उन्होंने ही, उनके मेंबरान ने ही आवाज़ उठाई, हमने आवाज़ उठाई और लोगों ने भी आवाज़ उठाई कि ये गलत है और ये एक हमला है ये जो मुसलमानों के हुकूक पर, वक़्फ़ के मामलात पर। ये बरमला कहा असेंबली में। आपने कहा कि अभी आवाज़ उठानी चाहिए, आपने कहा आवाज़ उठानी चाहिए। सुन लीजिए ना, लेकिन ये ज़रूर है कि स्पीकर साहब ने ये कहकर कि ये सब्जुडिस मामला है, बहस करने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन ये आप कहेंगे कि आवाज़ नहीं उठी, शोर किया, काफ़ी 2 दिन 3 दिन मुअत्तल रही पूरी कार्रवाई। इसी इशू को लेकर मेंबरान ने अपने तरफ से कोशिश की और ये कोशिश बराबर जारी रहेगी। खुदा को याद करना, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, या कह सकते हैं कि गॉड इज ग्रेट, क्या ये यार ये अपनी अपनी चॉइस है। मैं तो ये चाहूँगा कि जहाँ हम अल्लाह अकबर जो अपना अकीदा होगा वो कर लें। कोई मजहब, बताया गया जामे मस्जिद मत बनाइए असेंबली को, वो जिन्होंने बताया उनसे पूछ लीजिए। वैसे आपका इस पे क्या सर टेक? मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये अकीदे का सवाल है हर एक का, कौन सा अकीदा है, क्या मस्जिद में करना है, क्या मंदिर में करना है। What will be your next move for amendment of bill? नेक्स्ट मूव यही है कि आपके सामने बात की, और मैं यहाँ भी जम्मू कश्मीर के आवाम से अपील कर लूँगा, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, यार आपसी इख्तलाफ का फ़ायदा वो ना उठाए। भारतीय जनता पार्टी तरफ आवाज श्रीनगर में एक तकरीब हूं संज कर अ दौरान भीमराव अम्बेडकर सद जाय दोहस पे तस खराज अकीदत पेश करना आव। अत मौके पे पार्टी लीडरों तरफ तिहद कारनाम ते गुजरावन आय तो तिमो वोनमुत जे भीमराव अम्बेडकर सुंद मुल्क तमीर करनस मज अख अहम किरदार। देखिए, आज आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो जयंती मना रहे हैं हम पूरे देश भर में। सुबह ही हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इनको श्रद्धांजलि दी और देश भर में हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हर जगह पे आज छुट्टी का दिन भी है और हर एक फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को याद कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जो हिंदुस्तान को एक बनाने में मदद करी है। 4th पिलर
जिसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ हर एक इंसान जो कानून को मानता है और कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, वो हिंदुस्तान का और भारत का वैसा बाशिंदा है जिसने कभी मुखालफत नहीं की। लेकिन आप जानते हैं कि हमें इस कानून की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी ज़रूरत है। जब भी भारतीय जनता पार्टी ने आज अम्बेडकर जयंती का एक फंक्शन भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस कश्मीर में रखा और इसको बड़े हमने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अम्बेडकर साहब को याद करने के लिए इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर इकट्ठे हुए हैं। अम्बेडकर साहब की कंट्रीब्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक ही नहीं है, उनकी समाज के बारे में एक सोच थी। उस सोच की वजह से पूरे के पूरे भारत को इकट्ठा रखने में बड़ी मदद मिली। अम्बेडकर साहब ने जितना काम जो है पिछड़ी जातियों के लिए किया, वो शेड्यूल कास्ट हो, वो शेड्यूल ट्राइब हो, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, या समाज का वो हिस्सा जिसके पास कोई साधन नहीं थे, वो काम जो उन्होंने कर दिया वो उसको भारत कभी भूल नहीं पाएगा। और अम्बेडकर साहब की सोच कि सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, जिनके पास साधन नहीं है उनको रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि इस मैसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज कश्मीर में है। कश्मीर में जहाँ से आवाज़ उठ रही है कुछ तबकों से रिजर्वेशन के। जम्मू कश्मीर को बोर्ड चेयरपर्सन तो भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी सिंध तरफ सऊदी अरब तरफ मुल्क हज कोटा कम करने सवाल रद्द अमल ज़ाहिर करान वन आमुद जो लुकन छन अम हवाल ज़्यादा परेशानी हनच ज़रूरत तिकाज मामले यी मरकजी हुकूमत तरफ सऊदी हुकूमत से तुलन युथ कह मुस्बत हल कड़न यी। तमो वोन जे अम ब्रोह तह बैन अवी सतहस पे कह मामले दरपेश आय, तहम आई मरकजी सरकार तरफ बर वक्त मुदाखलत कर तमाम मामला हल करना। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंद इरफान फाजल से तमो खास कत बात करमज। ये पूरा सिर्फ कश्मीर के लिए कम नहीं हुआ, ये पूरे भारत में ये कोटा जो है कम हो गया। उसकी कमी यहाँ पे कितनी होगी JNK में वो भी देखा जाएगा, कितना % हमारा कम हो सकता है। लेकिन ये वहाँ से क्यों हुआ है, इसके लिए हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बात करेंगी, और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, वो बात करेंगे इसके लिए, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा वहाँ से क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा तशवीश में आना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक आपने देखा है कि जब भी कोई ऐसी बात हुई है, भले ही वो हज को लेकर ना हो, कहीं पे भी हमें फॉरेन में किसी भी कंट्री में जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसको खुद देखते हैं और उनकी देख रेख में कोई भी परेशानी हमें आज तक नहीं हुई है, और उम्मीद है कि आज भी इस परेशानी का समाधान निकल आए। अगर हमारा कभी भी कोई भी बच्चा, आप देख रहे हैं कि फॉरेन में अगर कहीं पे वॉर हुआ या कोई बच्चा बीमार हो जाता है, या कहीं पे भी जब हमारे फॉरेन अफेयर्स की बात आती है, तब हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और फॉरेन मिनिस्टर खुद इन चीज़ों को ले लेते हैं। मुझे याद है जब हमारी सुषमा स्वराज जी फॉरेन अफेयर्स देख रही थी, तब भी कितने बच्चों को लाया गया और कितनी चीज़ों को देखा गया। तो आज जब ये बात सऊदी गवर्नमेंट से आई है, तो मुझे यकीन है पूरा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी और हमारे मिनिस्टर साहिबान भी इस चीज़ को देखेंगे, और लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। बीजेपी पार्टी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद अनवर खान सदस सदारत मज आयाज खानपोरा बारामूला मज एक सफाई मुहिम सज कर यथ दौरान सैयद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह सदिस ज़ियारत अंद पे साफ सफाई करना आई। अत मौके पे मोहम्मद अनवर खान सद तरफ वन आमुत दुरुस्त मुल्कस अंदर बीजेपी पार्टी तरफ यह मुहिम चलाने यवान यम जरिए स्कूलन हस्पतालन ज़ियारतन हज साफ सफाई करने तमो आम लुकन पे जोर दितमुत ज तम गसन पन उंद पुक साफ थावन युथ माहौल डंज रोज। छः
अभी जो 6 अप्रैल को हमारी पार्टी का फाउंडेशन डे है, 6 से लेके 25 तारीख तक आप पूरे मुल्क के साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर बारामूला में अभी हम खड़े हैं, एक प्रोग्राम चल रहा है, बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, मगर एक प्रोग्राम ये भी है कि आपको पता होगा कि बहुत कुछ साल पहले हमारे मोदी जी ने स्वच्छ भारत का जो वो शुरुआत की थी, उसी के सिलसिले में आज जो हमारा प्रोग्राम है इसका नाम दिया गया है गांव बस्ती चलो अभियान, जहां हर जितने भी हमारे वर्कर हैं उनका काम यह है कि जो भी हमारे चाहे दरगाहें हो, मस्जिदें हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, गली कोचो हो, वहाँ पे हमें सफाई करनी है। उसके साथ साथ में जहाँ पे आबी ज़खायर हो, आबी वसाइल है, वहाँ पे भी हमें जाके 8 घंटे आज खानपुरा में आपने देखा सुबह से हम यहाँ पे हैं और बराबर 8 घंटे में आज के दिन में यहाँ रहूँगा। जो भी यहाँ पे आपने देखा दरगाह, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस दरगाह आलिया को मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला यहाँ साफ़ सफाई करने का। तो इसके बावजूद जो भी यहाँ पे चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, गली हो, कोचे हो, आप देख रहे हो हमारे साथ यहाँ के ज़ी-इज़्ज़त शहरी, यहाँ हमारे तहसीलदार साहब जैसे, इन्होंने भी आपने देखा, इन्होंने भी झाड़ू उठाया और इन्होंने भी इस दरगाह आलिया की जो है वो सफाई की। आप देखो कि शौक़ से यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ के अकीदतमंद हैं, वो भी यहाँ पे खड़े हैं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। लगता है इससे पहले काफ़ी साफ़ सफाई का फुकदान था यहाँ पे, इस ज़ियारत के हवाले से बात करें या दीगर ज़ियारतों के हवाले से बात करें? देखो पूरे मुल्क की अगर आप बात करो, इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक मुहिम छेड़ी थी, स्वच्छ भारत अभियान। आपने देखा कि कोई गाँव ऐसा नहीं रहा, कोई देहात, दूर दराज इलाका, चाहे वो बॉर्डर पे हो, उड़ी के बॉर्डर पे भी हो, वहाँ पे भी आज देखो आप साफ़ सफाई, आप इससे पहले देखते थे जो म्यूनसिपल हदूद थे वहाँ पे हमारे पास साफ़ सफाई के जो इंतज़ामात वो नहीं होते थे, हमारे पास मैन पावर नहीं होती थी, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं होती थी, हमारे पास डस्टबिन नहीं होते थे। आज देखो हर पंचायत, कोई पंचायत SSP हंदवारा मुश्ताक अहमद चौधरी सदिस हिदायत पे आवाज हंदवारा पुलिस तो स्कूल तलब इलमो तरफ ट्रैफिक हवाल जानकारी मुहिम सज कर अत तलब इलमन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे राहगीरन तो खासकर ड्राइवरन हिदायत दिन आमद जे तम गसन ट्रैफिक कानून पे सख्ती सान अमल करें युथ सड़क हादसन पे रुट लागने यी। बेशक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और हम चाहते हैं कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हों और इसमें विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन इसमें पार्टिसिपेशन हो। हम चाहते हैं कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं शायद हम उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं जो अपनी ज़िंदगियों से खेलते हैं, जो अपने वालिदैन के अरमानों से खेलते हैं, हार्श ड्राइविंग करते हैं, या अगर उनको पता होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, कंप्लीट नहीं हैं, उसके बावजूद भी उनके पेरेंट्स को भी पता होता है, उसके बावजूद भी वो निकलते हैं रोडों पे, रकस करते हैं, वो ड्रिफ्टिंग वगैरह करते हैं, अपनी ज़िंदगियों से खेलते हैं। उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, मत करो ऐसा, ज़िंदगी एक ही बार आती है, ज़िंदगी बार बार आने वाली नहीं है। आहिस्ता चलाओ, गाड़ी को आहिस्ता से चलाओ, घर से निकलो, औरों को भी बचाओ, खुद को भी बचाओ, और अपने वालिदैन के जो आपके अरमान हैं उनका साथ दे दो, उनको वो अरमान पूरे करने दो अपने तरफ से। और बाकी जो इसके हवाले से यहाँ पे आजकल ट्रैफिक पुलिस जो काम कर रही है इन चीज़ों को कर्व करने के लिए बड़ा अप्रिशिएबल है, और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो इसके लिए काम कर रहे हैं, अभी ये सड़कों पे होते हैं, हम बड़ा खुश होते हैं जब थ्रू सोशल मीडिया और आपकी माध्यम की से हम ये इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि आप लोग कवर करते हो इन चीज़ों को, हम देखते हैं। वादी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज जंगली जानवरन हुंद आम लूकन पे हमला करनुक सिलसिले जारी। ये आज ते जिला कुपवार किस क्रालपुरा इलाकस मज तेंदवा सिंद तरफ अकिस जन तो बुजुर्ग शहरस पे हमला कर तम जख्मी करना आमद। यह वाक़ तम सात पेश आमद ये दुशवाई आलूसा क्रालपुरा इलाकस मज जमीनस पे काम करान, या दौरान तेंदवा सिंद तरफ तिमन पे हमला करना आव। वाक़ पेश पत तम जख्मी हालत मज हस्पताल निन आमद, जन वाइल्ड लाइफ, पुलिस, फौज तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स तरफ मुश्तरक कार्रवाई कर जंगली जानवर रटन कोशिश कर आमज, ताहम आखिरी इतला वातनस ताम रटन आमुद, ये जन लुकन वन आमुद जे तम गसन अम हवाल एहतियात वर्तावन। जिरवे त्राल के सिवा इलाकस मज आयाज बैसाखी हवाल गुरुद्वारन मज तकरीब हुंद संज करने, यथ मज सिख बरदरी सत वाबस्त लुकन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नाइक ते
موجود تمو تہ تقریب من شرکت کرت لکن مبارکباد پیش کرم تمو ات موقع پہ وونمت زِ ترال ہمیشہ ہندو مسلم سکھ اتحادس من مشہور رودمت تو امید چھ یہ بھائی چار روز برہ کن تہ قائم یُتھ ترالچ تعمیر و ترقی یقینی بنانے یی کرے کس کو کسی کی نظر نہ لگے، یہ بھائی چارہ قیامت تک جاری رہے. دیکھیے میں لوگوں سے ایک ہی گزارش کروں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. سجتا ہے یہ بہار جب سب خوش ہوں، کیا مسلمان کیا سکھ کیا ہندو، جب ہم پرانی طرح اپنی ایک شانہ بشانہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ ہیں. واللہ اسی میں مزہ ہے کہ ہم سب آخر انسان ہی ہیں. دھرم وبھن ہو سکتے ہیں ہمارے، لیکن انسانیت کا دھرم سب کا دھرم ہے. میں چاہوں گا آپ لوگ بھی، ہم بھی، یہ بھی اکٹھے پھلے پھولے ترقی کرے، ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اور اللہ کرے سب کو سکھ شانتی مل جائے. یہ میری دعا ہے اللہ سے. خالصہ ساجنا دیوس کے نام پہ بولتے ہیں. آج کے دن گرو گوبند سنگھ جی نے کیس گڑھ صاحب پنجاب میں 5 پیارے ساج کے ایک نئے دھرم کی بنیاد ڈالی، جسے خالصہ دھرم کہتے ہیں، جس سے ہم سکھ وابستہ ہیں. آج کے دن ہم سکھوں سے سنگھ بنے، اور یہ دن ہم سارے ملک کے ساتھ ساتھ آج گردوارہ ٹی بی صاحب سیمو میں ہر سال مناتے ہیں. بہت سی سنگت آتی ہے، اور یہاں عقیدت مند آتے ہیں، یہاں ایم ایل ایز آتے ہیں، یا باقی جو جتنے بھی ہمارے میجارٹی کمیونٹی یا مائنارٹی کمیونٹی سے لیڈران صاحبان ہیں، یا دینی لیڈر ہیں، یا سیاسی لیڈر ہیں، وہ آتے ہیں مبارکباد کرنے کے لیے. آج کے دن ہم واحد گرو سے یہی پرارتھنا کرتے ہیں کہ آج کے دن ریاست کشمیر، جموں کشمیر میں، اور خصوصاً کشمیر کے اندر اللہ تعالیٰ بھگوان واحد گرو امن اور شانتی لے کر آئے. یہی ہمارا پیغام ہے. چھٹی سنگھ پورہ شانگس اننت ناگس مز آز بیساکھی حوالہ نگر کیرتن ریلی ہند سنز کرنے. سکھ برادری طرف کڑنا ریلی آو مسلمان برادری طرف مختلف جائن پہ استقبال کرنا. ریلی حوالہ انتظامیہ طرف تہ سیکورٹی تو دویم انتظامات برہی کرنا آمت. تو ات موقع پہ ون آمت مسلم سکھ بھائی چار ہمیشہ قائم رودمت، تو ات بھائی چارس مزید پوچھر تو لول برنچ ضرورت. گلستان نیوز چینل کا بہت بہت دھنیواد ہوں، اپنے دونوں بھائیوں کا، مظفر صاحب اور اقبال طارق صاحب کا، جو ہمیشہ اس پروگرام کو کوریج کرنے کے لیے آتے ہیں. اور فارمل کمیونٹی کی جہاں تک میسیج ہے، یہاں سے ہی نعرہ نکلا، ہندو مسلم سکھ اتحاد زندہ آباد زندہ آباد. روز بیساکھی ہے، آپ نے خود بھی دیکھا، مسلمانوں نے، ہندو بھائیوں نے ہمارا اتنا سپورٹ کیا کہ من خوش ہو گیا ہے، اور وہ ہر سال ہمارے اس پروگرام میں شمولیت کرتے ہیں. بڑا دن منانے کا وہی مطلب ہوتا ہے جب سارے اکٹھے ہندو مسلم سکھ مل جل کے یہ سماگم مناتے ہیں. اور آج بیساکھی کا جو ہمارا خالصے کا جنم دن ہے، جنم دن منا رہا ہے خالصہ. ہم یہی میسیج دیتے ہیں کہ کشمیر میں بھائی چارہ، آپسی بھائی چارہ، پیار، پیس. گردوارہ سنگھ سبھا سمندری حال سے نگر کیرتن نکالتے ہیں، 5 پیارے سربراہی کرتے ہیں. صاحب سری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج پالکی میں سوار ہوتے ہیں، اور نگر کیرتن گردوارہ سنگھ سبھا سمندری حال سے ناظرین کوشر خبر نامہ یتنا سیان اجازت دیو خدا